morning, dear students. This is Vijay Lakshmi here, your accounts teacher. Nowadays, we are doing topic cash book. Under cash book, we are doing two columns cash book. Today, we will solve question number 11A. Practical question number 11A. Right? And this question is at page number 11.61 in your accounts book. Enter the following transactions into column cash book of Mr. Mohan. So we will write here in the books of Mr. Mohan, and after that two columns cash book. Cash book. And within bracket we will write cash and bank columns. Right? Now first is, the year is 2018, January 1st, cash in hand 2200 and cash at bank 50,000. Cash in hand means this is balance brought down. So two balance brought down, cash column 2200, bank column 50,000. Next is purchase goods for 75,000, trade discount 20%. CGST 6%, SGST 6%, and payment made by check. Now, from purchase amount, first of all, we will deduct 20% of trade discount. So, remaining amount will be 60,000 by purchase account. Payment is made by check. So, 60,000 bank column credit side. Then CGST and SGST at the rate of 6% on 60,000. So, by input CGST 3600. By input SGST 3600. All three amounts will be written in bank column credit side because payment is made by check. Next is sold goods for 40,000, trade discount 15%, IGST 12%, payment received by check. Now, nothing is given about this check. So we assume the check is deposited in the bank same day. Right? So यहाँ पे हम पूरा अमाउंट डालेंगे बेटा, to sales account 34,000, to output IGST 4080 means 12% of 34,000. Then received a check from Naresh. Now बेटा सिर्फ इतना लिखा है. So before entering it into cash book, we will proceed to the further transactions to know what happened to this check. In next day transaction, it is written check received from Naresh endorsed to Suresh. Endorse मतलब बेटा ये बैंक में deposit नहीं हुआ, rather the check is transferred to someone else person. जो हमारे bearers check होते हैं वो हम किसी को भी आगे दे सकते हैं and that person get it in cash from the bank, right? तो नरेश से जो चेक मिला वो आगे सुरेश को दे दिया. तो जिस दिन वो नरेश को चेक मिला बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ, तो we will make its entry in journal. जर्नल में क्या एंट्री हो जाएगी? चेक इन हैंड डेबिट टू नरेश. तो फिर की एंट्री हम जर्नल में करेंगे चेक इन हैंड अमाउंट डेबिट टू नरेश. और 8 को वही जो चेक इन हैंड था, जो चेक था, it was given to सुरेश in full settlement of 1050. 1000 का चेक था and it is given to सुरेश for 1050. So एंट्री क्या हो जाएगी? सुरेश डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू चेक इन हैंड. उसकी भी जर्नल एंट्री होगी. ना 5th की एंट्री होगी कैश बुक में, ना ही 8th की. राइट? सो इट लेटर ऑन वी विल राइट इन वर्किंग नोट्स. जर्नल की एंट्री शो करेंगे और वर्किंग नोट्स में दे देंगे. राइट? नेक्स्ट है पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ मिस्टर मोहन. ये हमारी क्या है? ड्रॉइंग्स है. सो बाय ड्रॉइंग कैश कॉलम 100 रुपीज. अगर चेक लिखा होता तो बैंक से कर देते. Received a check from Pawan in full settlement of his account 750. 700 का चेक मिला बेटा. 50 रुपीज जो एंड उसके बाद है. अब इस चेक से रिलेटेड हम आगे ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे. Only then we can come to know how to enter it, whether to enter it in cash book today or not. Now 16th को है Pawan's check returned dishonored by bank. It means वो चेक जो है बैंक में डिपॉजिट हुआ सेम डे, तभी वो डिसऑनर हुआ 16th को. That's why on 13th को हम उसको बैंक में डिपॉजिट कराएंगे. 2 पावर 700. यहाँ पे चेक का अमाउंट लिखेंगे, जितने उसने देने थे वो नहीं. 50 रुपीज की डिस्काउंट की सेपरेट एंट्री होगी वर्किंग नोट्स में. 13th को जर्नल एंट्री ऑफ discount.
सिर्फ डिस्काउंट का चल रहा है। रिमेनिंग अमाउंट 700 विल बी रिटर्न इन कैश फ्लो। एंड ऑन 16 पवन's चेक रिटर्न डिसऑनर्ड बाय बैंक। पवन का चेक डिसऑनर हो गया तो यहाँ रिवर्स एंट्री हो जाएगी बाय पवन 700। नाउ इसके बाद बेटा मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। अब देखिए हमारे पास कितनी रिसिप्ट है, सिर्फ कैश कॉलम की देखिए 2200 रुपीज पड़े हैं यहाँ पे और स्पेंड कितने हुए अभी तक 100। ठीक है, अब वो बोलते हैं कि कितने पैसे रह गए 1900 पड़े हैं, 1900 में से सॉरी 2000 पड़े हैं। वो बोलते हैं कि डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कुछ पैसा बैंक में डिपॉजिट कराना है 20 तारीख को। बैलेंस ऑफ कैश इन एक्सेस ऑफ 250, क्लोजिंग बैलेंस कैश का सिर्फ 250 रुपीज रखना है कि 250 रुपए तो बैलेंस रह जाए कैश का क्लोजिंग, और जो बाकी डिफरेंस अमाउंट है इट इज टू बी डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब बैंक में कैसे डिपॉजिट होगा, देखिए यहाँ टोटल में लिखा 2200, राइट। 2200 में से 100 रुपीज स्पेंड हो चुके हैं, 250 बैंक में डिपॉजिट कराने हैं। रिमेनिंग कितने बचे बेटा 250 क्लोजिंग बैलेंस रखना है कि कैश इन हैंड पड़े रहे बिजनेस में, बाकी पैसा बैंक में डिपॉजिट कराना है। मींस कितना पैसा आया हो 2200 में से 350 को माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट 2200 टोटल रिसिप्ट्स थी, 100 स्पेंडिंग होगी, 250 कैश करना है, बाकी बैंक में डिपॉजिट कराना है। तो 2200 में से 350 माइनस करेंगे, इट विल बी 1850। ये आपका क्या ट्रांजैक्शन बन जाएगा, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक मींस कॉन्ट्रा एंट्री, तो यहां पे क्या लिखेंगे 28 को बाय बैंक अकाउंट, कॉन्ट्रा एंट्री, राइट। यहां पे लिख दो टोटल पेमेंट्स और यहां लिखिए। अब ये यहाँ 1850 बैंक में डिपॉजिट कराए, यहाँ पे बैंक कॉलम में आ जाएगी 1850। यहाँ पे क्या लिख देंगे 28 को टू कैश अकाउंट, कॉन्ट्रा, राइट। एंड आफ्टर दिस इस साइड का टोटल, इस साइड का टोटल, एंड वी कैन कैलकुलेट द बैलेंस। कैश का क्लोजिंग बैलेंस ऑलरेडी हमें गिवन है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये तो आ गया 250। अब बैंक का निकालने के लिए दोनों साइड्स का टोटल करिए एंड डिफरेंस को कैलकुलेट करिए, राइट। यहाँ का टोटल देखिए कितना आया 0, 90,550 और इधर आ गया हमारा 0, 0, 67,900 and remaining will be your balance. Total money 90,530 और remaining यहीं पे closing balance आपका favorable ही आ रहा है 22,730। राइट बेटा, ये क्लोजिंग बैलेंस आ गए एंड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट। यहाँ पे लिख देंगे जनवरी फरवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉड 250 एंड बैंक का बैलेंस आ जाएगा 22,730। सिर्फ यहाँ पे हमें इन दिस ट्रांजैक्शन वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। कैश का ऑलरेडी क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, हम ऑलरेडी पहले हम क्लोजिंग बैलेंस निकालते थे, यहाँ क्लोजिंग बैलेंस कैश का गिवन है। सो पहले हम कैश वाले कॉलम को कंप्लीट करेंगे लास्ट ट्रांजैक्शन के लिए, जो पैसे खर्च हुए
क्लोजिंग बैलेंस, डिफरेंस अमाउंट जो है इट विल बी डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक डिपॉजिट हो रहा है मतलब कॉन्ट्रा एंट्री। पहले कैश कॉलम को कंप्लीट करिए दोनों साइड्स का, देन इस कॉन्ट्रा एंट्री के अमाउंट को बैंक कॉलम में शिफ्ट करिए, देन बैंक की क्लोजिंग करिए, राइट? आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू नाउ. Any doubt you can ask me, right children? Thank you very much. And complete till question number 11b. Complete all the questions. Thank you children.